آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ایٹ 5 اور میں ہوں آپ کی آج کی ہوسٹ وردہ شجاع۔ آج کے پروگرام میں بہت سے اہم موضوعات کو ہم نے شامل کیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے لیے چلیں گے پروگرام کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک اہم تقریب سے سیمینار سے خطاب کیا جو کہ ذہنی صحت کے حوالے سے تھا، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان مختلف ادوار میں ہر چیز کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ مزید بھی بات چیت کریں گے۔ بات ہوگی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کا 170واں روز ہے۔ آج مظلوم کشمیری اپنے حق خود ارادیت کی ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، مسلسل گھروں میں محصور ہیں اور ہر طرح کی پابندی کی وجہ سے وہاں پر اشیاء خودنوش کی شدید قلت ہو گئی ہے اور نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج۔ اور بات ہوگی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اچانک افغانستان کا دورہ کیا۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس دورے کو خفیہ رکھا گیا، لیکن تھینکس گیونگ کا موقع تھا اور امریکی فوجیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ امریکی صدر کا پہلا دورہ افغانستان تھا جب سے انہوں نے صدر کا منصب سنبھالا۔ اور بات کریں گے پاک فضائیہ کی آپریشنل مشق کا انعقاد کیا گیا۔ اس کو ہاک آئی کا نام دیا گیا۔ آپریشنل ایئر بیسز میں جو تمام ہیں انہوں نے حصہ لیا اور اس سے پاک فضائیہ کی جارحانہ حکمت عملی کو جانچا گیا۔ اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی جانب سے دسمبر 1977 میں قرارداد کے ذریعے جو ہے لایا گیا، اور جتنے بھی رکن ممالک ہیں وہ آج کے دن کو فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اسموک کے بعد اب صبح کے اوقات میں پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے، جس کی وجہ سے بڑی شاہراہیں بھی جو ہیں وہ بند کر دی گئی، موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا۔ یہ دھند کب تک جاری رہے گی اور کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے فصلوں کے حوالے سے انسانوں پر، تو یہ بھی اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم جانچیں گے۔ اور کرکٹ پر بھی بات کریں گے۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ کا آج دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ یہ تھی آج کے پروگرام کی ہیڈ لائنز، ان پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ۔ Your Majesty, Queen Maxima, thank you for coming here and really taking so much interest with so much passion for something which we Pakistanis, it's our duty to take people out of poverty. And I was really impressed that someone could care so much for human beings not in their country, in some other country. I was a social worker before I became a politician. My motivation for coming into politics was social work. It's only if you came into government and built a welfare state, that's the only way you can really help the underprivileged people in your country. I was inspired by our Prophet, peace be upon him, who set up the first welfare state in the history of mankind. We are told in the Holy Book by the Almighty, the Divine Book, that we have to follow the example of our Prophet, peace be upon him. And hence, my motivation for coming into politics, to build a welfare state in Pakistan. And so this program of Ehsaas, which basically means care and compassion, Your Majesty, thank you for coming. We welcome you here. We hope you will come back, and we value the concern you show for our country. Thank you.
वेलकम बैक नाज़रीन। लाइव एट 5 में अब हम बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से होने वाले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक ज़हनी सेहत के हवाले से जो कि नौजवानों की ज़हनी सेहत है उसके हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी थे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। मुआशरे में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रिश्तों में हम बंधे होते हैं और इन रिश्तों से जुड़ी एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये एट टाइम्स बहुत डैमेजिंग भी साबित होती हैं। हमारे अपने पैरामीटर्स होते हैं चीजों को देखने के हवाले से। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस मौके पर ये कहा कि इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीजों को अपने अंदाज से देखता है और हमारा जो रद्द-ए-अमल है वो दूसरों के रवैयों पर ज्यादा इन्हिसार कर रहा होता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें दरगुजर का जो एक सबक मिलता है वो बहुत नुमाया पहलू था उनकी जिंदगी का, और इस दरगुजर के जरिए हम तलखियों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमने बात करने के लिए इस वक्त जो है राब्ता किया है प्रोफेसर डॉक्टर अंसर मकसूद साहब हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं, आपसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आज के सेमिनार के हवाले से बताइएगा। जी, ये आज का सेमिनार हमारा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है जिसके के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर रिजवान ताज हैं, ये इनकी काबिज थी। और ये एक सेमिनार था जो कि इसका मेन टॉपिक था कि हमारी यूथ में मेंटल हेल्थ इन यूथ के रेफरेंस से था कि हमारी यूथ पे जो स्ट्रेसेस हैं और उससे जो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो ये बेसिकली टॉपिक यही था आज हमारा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक हमारा एक पायनियर इदारा है जिसमें कि बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। साइकियाट्री इज वन ऑफ द स्पेशलिटी जो कि हमारे पिम्स में इसका एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है और यहाँ पे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से पेशेंट जो हैं वो आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर जी ज़हनी सेहत को इससे पहले इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसको इग्नोर किया जाता था और लोग भी शाये होते थे कि हम जाकर राब्ता करें कि हमारे साथ कोई ऐसा मसला है। लेकिन ये भी एक बेहतरी की जानिब कदम है कि इसका इदराक किया जाने लगा है कि इसकी भी उतनी ही अहमियत है जैसे कि दीगर इंसानी सेहत की अहमियत होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जब भी हमारी सोसाइटी में ये एक तरह का स्टिग्मा बन जाता है कि ये नफ्सियाती मरीज है, नफ्सियाती मर्ज चाहे वो मामूली नोयत का क्यों ना हो जो कि एक आम सा स्ट्रेस है हमारे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आजकल हमारे स्कूलों में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज का है कि जी उन्होंने अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है और उनकी जो रैंकिंग है वो बेहतर से बेहतर हो सके ना। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस जिसकी वजह से बच्चे बाज का जो है वो इस हद तक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसकी उनको बच्चों को तो ज्यादा रिपरकशंस का पता नहीं चलता कि उसकी पर्सनालिटी जो वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो इसी तरह हर सेगमेंट में हर लेवल पे हमारी सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज हैं। और ये आपने सही कहा कि हम नफ्सियाती, ये भी एक तरह का एक मसला तो है, नफ्सियाती मसला है, चाहे उसकी आप कह लें शिद्दत कह लें या उसकी जो टाइप जो सी वो कह लें वो मामूली सी है, मगर इसी से चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं और बंदा अंदाज में एक अच्छी खासी नफ्सियाती मसले में उलझ जाता है। सर, हम अप्रिशिएट करते हैं पिम्स के इनिशिएटिव को कि नौजवानों की ज़हनी सेहत के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। लेकिन क्या इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं ये दरगाहों में भी आप देने के हवाले से कुछ प्लान रखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, खुदकुशियों के वाकयात हमारे सामने आते हैं और एक पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर अपनी जगह मौजूद है। इसके हवाले से भी बताइएगा कि कुछ आपके प्लान्स हैं। जी देखें, इसमें जैसे कि आज हमारे सेमिनार में हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर रिजवान ताज, क्योंकि वो इसी शोबे से मुंसलिक हैं और इसी में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इन्हीं चीजों के ऊपर काफी ज्यादा उनको हाईलाइट किया है और उनकी भी यही सजेशन थी कि ये हमें स्कूलों में भी जाके बच्चों के ऊपर ये स्टडीज जो सी है उनको बकायदा उनको करना चाहिए कि बच्चे के ऊपर किस किस्म का स्ट्रेस है। और जब हम मरीजों की बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में तो चले, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो आपके पास ये साइकेट्री डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ के मरीजों का इलाज तो हो जाता है, मगर जो प्रिवेंशन के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं तो वो जाहिर है वो आपको ज्यादा ग्रासरूट्स लेवल पे जाना पड़ता है। बच्चे को शुरू से ही उसको देखना पड़ता है कि कहीं ये वाले मसले मसाइल उस लेवल पे तो नहीं हो रहे। एक तो स्कूल का लेवल है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि जी
ट्रीटमेंट के रेफरेंस से, तो हमारी भी यही सजेशन है, हमारे एक्सपर्ट्स की ये सजेशन है कि हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स में तो चलो ये हो जाता है, मगर जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर जो उनसे हैं, जो कि जैसे कि जब हम ICT की बात करते हैं, इस्लामाबाद के जो हमारी जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं और बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वहां पर भी इसकी पहुंच होनी चाहिए, इसको वहां पर भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि नर्स है वो जल्दी जो नफ्सियाती जो अमराज हैं वहां पर भी देखा जा सके, उनका जो इलाज है वो किया जा सके। तो बड़े शहरों में तो इस हवाले से अब काफी अवेयरनेस पाई जाती है, लोग समझते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास बाकायदा जो है वो सेशंस कराने भी जाते हैं, लेकिन देही इलाकों में अभी भी ये स्टिग्मा के तौर पर ही लिया जाता है कि हम पे कहीं पागलपन का धब्बा न लग जाए, ठप्पा न लग जाए। और खवातीन हम देखते हैं आदाद शुमार के मुताबिक कि मर्दों से ज्यादा ज़हनी सेहत के हवाले से मुतासर हमें नजर आती हैं। वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, ICT की बात करते हैं, तो हमारे माहिरीन की यही राय है कि जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, तो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी ये आपके साइकियाट्री के जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे भी होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जो रूरल एरियाज में जो हमारे मरीज हैं या जो किसी न किसी नाते से किसी न किसी नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं, वो वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको वहीं पर ही ट्रीट किया जा सके। प्रोफेसर डॉक्टर अंसर मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हम ज़हनी सेहत के हवाले से, जो नौजवानों की ज़हनी सेहत है, उस हवाले से प्रिंस में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आगाही फैलाई गई और मेहमान खुसूसी थे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन के 117 रोज मुकम्मल हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि मजलूम कश्मीरी कैदोबंद की सऊबतों में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वहां पर जगह जगह भारतीय चौकियां कायम की गई हैं गली मोहल्लों में, और उन चौकियों पर हर तरह का खतरनाक असलहा मौजूद है। एक खौफ और दहशत की फजा जो है वो बरकरार है वहां पर। लेकिन कश्मीरियों ने भी ये तहैया कर रखा है कि हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारा हक है, हक खुद इरादियत, उसके हुसूल के लिए हर
तरह की कुर्बानी हम देते चले जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे 117 रोज का लॉकडाउन, और जैसे कि भारत पहले कह रहा था कि 4 माह जो है ये लॉकडाउन रहेगा, 4 माह मुकम्मल होने वाले हैं। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अब्दुल राफी रसूल साहब हैं। आप तज्ज़कार हैं और गहरी निगाह रखते हैं खत्ते के मामलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल राफी रसूल साहब। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के 117 रोज, और हम देखते तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि किस तरह से कैदोबंद की सोबतों में कश्मीरी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मकबूजा वादी कश्मीर में मुसलसल 117वें रोज भी भारतीय फौजी मुहासरा जारी है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि भारत इसराइल तर्ज के नापाक और शर्मनाक मंसूबों पर भी मकबूजा कश्मीर में शद-व-मद से कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। असल में हिंदू जब नाकाम हुआ कश्मीरियों के अज़म के सामने, तो फिर हिंदू मनसूबा साजों की खोपड़ियों में ये बात पड़ी कि कश्मीरी मुसलमानों के जहनों और कश्मीर की मुसलमान आबादी के तनासुब को बदले बगैर कोई चारा नहीं। भारत समझता है कि इसी से ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत समझता है कि फलस्तीन की तरह यहूदियों को बसाने और फलस्तीनियों को अक़लियत में बदलने से ही फलस्तीनी ज़ेर हुए, और जब कश्मीर में भारत के लगत फहम के मुताबिक फलस्तीन जैसा मॉडल अपनाया जाए, तो फिर वो समझता है कि कश्मीरी मुसलमान भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर हो सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं भारत के तमाम हथकंडे और तमाम नापाक मंसूबे कश्मीरियों के अज़म के सामने बिल्कुल नाकाम है। जैसा कि अभी आप फरमा रही थी कि 117वां रोज हुआ है लॉकडाउन का। अगर कश्मीरियों ने ज़ेर होना होता भारत के सामने, अगर कश्मीरी मुसलमानों को सिपर अंदाज होना होता भारत के सामने, तो वो मेरे ख्याल में 100 दिन से पहले ही खुदा न खास्ता उन्होंने सरेंडर किया होता। लेकिन शदीद कदगने और क्रैकडाउन और मुहासरा और बहुत ज्यादा कदगनों के बावजूद भी आज जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो गलियों में आके, सड़कों पे आके, मैदानों में आके, अपने घरों के से बाहर आके हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम क्या चाहते आजादी, अपने उसी मौके पर कायम है जो अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। राफी रसूल साहब, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जल्द अज जल्द इस लॉकडाउन को खत्म करें। भारत की हुकूमत की जानिब से भी इनिशियली कहा जाता रहा कि 4 माह तक ये कर्फ्यू रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि 4 माह भी मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू जो है बदस्तूर जारी है। क्या समझते हैं, भारत खौफजदा है मजलूम कश्मीरियों से कि वो रिस्क नहीं ले रहा इस कर्फ्यू को उठाने का, क्योंकि उसके बाद तो मामला उसके हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे? दुर्रा साहिबा, आप ये न कहें कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, बल्कि आप ये फरमाएं कि पूरी दुनिया जी, आप देख रहे, पूरी दुनिया भारत को कह रही है कि ये जो आपने कश्मीरियों का मुहासरा किया हुआ है, इस मुहासरे को खत्म करें और वहां उनके बुनियादी हुकूक को जो आपने पामाल किया हुआ है उनको बहाल करें। लेकिन पूरी दुनिया की इस सदा को, पूरी दुनिया की इस आवाज को, पूरी दुनिया के इस प्रेशर को अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है कि भारत पर असर अंदाज हो रहा है। चाहे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहे, हमें ये नहीं बोलना चाहिए दुर्रा साहिबा, ये वही भारतीय सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक कश्मीरी नौजवान को, जिसे अफजल गुरु के नाम से हम सब जानते हैं, उन्हें ये कह के फांसी की सजा दी कि ये मुजरिम नहीं है, इसने ये एक्ट नहीं किया है जो चार्जेस इसके ऊपर है, लेकिन हम सिर्फ भारत के ज़मीर को मुतमईन करने के लिए एक कश्मीरी नौजवान को फांसी पर चढ़ाते हैं। लिहाजा भारत की सुप्रीम कोर्ट कहे या न कहे उसकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि दुनिया पूरी भारत से कह रही है कि लॉकडाउन खत्म करें
कदगने खत्म करे और कश्मीरियों को उनके जो हुकूक है और सबसे बड़ा हक है, हक आज़ादी उनको दे। लेकिन अभी तक भारत इस प्रेशर के सामने जेर नहीं हो सका और इस प्रेशर को कबूल नहीं कर रहा है। अब्दुल राफी रसूल साहब, कश्मीरियों के जज्बे पे भी हम बात करेंगे। वहां पर हम सब जानते हैं कि जैसे जिनोसाइड वॉच की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वहां पर सूरत हाल को, और अब तो सूरत हाल ये है कि खवातीन के इस्मत दरी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के जो है बेबाक दावे किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं, दुनिया अभी भी आंखें बंद किए बैठी रहेगी? मैं समझता हूँ दरअसल कश्मीर का जो मामला है ये भारत एक खास नुक्ते नजर से इससे देख रहा है और हमें भी उसी नुक्ते नजर से इसे देखना चाहिए। भारत समझता है कि कश्मीर मुसलमानों का है और ये हमने बिल्कुल मुसलमानों की आबादी को खत्म करना है। इसके लिए जो भी हथकंडे मैं इस्तेमाल कर सकूं वो करूं, और हमें ये याद रखना चाहिए कश्मीर का ये झगड़ा नजरियाती और तहजीबी तशक्कुस की लड़ाई है। तहजीबी तशक्कुस और नजरियाती लड़ाई जब हो तो जाहिर बात है फिर मुसलमानानी कश्मीर अपने दीन और अपने मजहब और अपने आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हिंदू भारत की गुलामी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह आपने फरमाया दुर्रा साहिबा कि बहुत सारी जो आलमी तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने ला रही हैं और खवातीन के हवाले से बिलखुसूस जो वहाँ चादर और चार दीवारी पामाल हो रही है, इसके हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही है। ये एक अलमनाक और शर्मनाक मामला है और भारत के लिए यकीनन ये उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मकबूजा कश्मीर में जो गैर कानूनी लॉकडाउन है उसके 117 रोज हो गए हैं, 4 माह मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन भारत खौफजदा है उन 69 कश्मीरियों से जो कि डटे हुए हैं उन बंदूकों के आगे, जो पैलेट गन्स के आगे डट जाते हैं और कोई भी जो है जुल्म उनको तो पीछे नहीं हटाने में अभी तक कामयाब हुआ है। और पाकिस्तान उनकी अखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा इसी तरह जारी रखेगा और हर फोरम पर हम उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा अफगानिस्तान के हवाले से। थैंक्स गिविंग का रोज था और उन्होंने सोचा कि अमेरिकी फौजियों के साथ जाकर वो खाना खाएं और इसलिए अमेरिका के सदर ने पहली मर्तबा अफगानिस्तान का रुख किया और ये उनका खुफिया रखा गया दौरा उनके आने से पहले, और ये कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात पर इसके हवाले से नहीं बताया जा सकता। अफगानिस्तान के सदर जो हैं अशरफ गनी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के और बिलखुसूस अफगानिस्तान उमूर के हवाले से। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान का दौरा किया और थैंक्स गिविंग को बहाना बनाकर वो वहां पर पहुंचे, लेकिन क्या समझते हैं ये क्या आने वाले जो इलेक्शंस हैं अमेरिकी उसके लिए पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में वो अफगानिस्तान आने के हवाले से कोई पॉलिसी लेकर आए वहां पर? इसमें चंद चीजें बड़ी अहम है उसकी तकरीर में जो उन्होंने फौजियों से की है। सबसे अहम तो यही है कि उन्होंने ऐलान किया है कि तालिबान के साथ दोबारा मुज़ाकिरात शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा कि 7 सितंबर को सदर ट्रंप ने खुद ही तालिबान के साथ मुज़ाकिरात कॉल ऑफ किए थे, मुअत्तल किए थे। तो अब ये ऐलान करना अफगानिस्तान में इसलिए इसकी अहमियत है कि एक मायूसी पैदा हो गई थी जब उन्होंने इसको रोक लिया था। हालांकि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जब जुलाई से मुज़ाकिरात शुरू हुए तो एक मुसव्विदे पे इत्तेफाक भी हुआ है। मुसव्विदा जो अमल उसका है मुआहिदे का, वो कतरी हुकूमत के हवाले भी किया गया था। तो अब वो एक जो कंफ्यूजन थी वो खत्म होगी। दूसरा, उन्होंने जो मुतालबा दोहराया है तालिबान से वो जंग बंदी का है, क्योंकि ये आपको याद होगा कि जब उन्होंने मुज़ाकिरात को रोक लिया था तो उन्होंने एक काबुल में जो तालिबान का हमला था जिसमें एक अमरीकी फौजी भी मारा गया था उसका हवाला दिया था। तो ये तालिबान अमेरिका का ये मुतालबा रहा है कि जंगबंदी का ऐलान हो, लेकिन तालिबान इस पे राजी इस वक्त नहीं हो रहे हैं और तालिबान का यही मुतालबा है कि वो जो मुसव्विदे पे दोनों का इत्तेफाक हुआ है उसका पहले ऐलान किया जाए। तो तालिबान ने वैसे भी कहा था कि वो जो पहले तारीख तय थी 13 सितंबर इसके ऐलान के लिए, अमन मुआहिदे के लिए, तो 14 सितंबर से तो तालिबान ने खुद भी जंगबंदी का ऐलान किया। तालिबान का मुश्किल है कि वो उस मुआहिदे से पहले वो जंगबंदी का ऐलान करे। तो इस हवाले से मतलब एक ये अहम है कि, और फिर उसने ये भी ऐलान किया है
کہ فوجیوں کی تعداد میں وہ کمی کریں گے. اس وقت تقریباً 13,000 تک امریکی فوجی ہے. تو یہ ایک میسج طالبان کو انہوں نے دیا تھا, ایک مثبت میسج, لیکن اب طالبان کا اس وقت تک کوئی فارمل رد عمل نہیں آیا کہ اس کا کیا موقف ہے. لیکن میرے خیال میں دورہ اہم ہے, اور ایک جو مذاکرات والا سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کا تو یہ سب سے اہم بات ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ باضابطہ مذاکرات کب شروع ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ بھی عمل میں آیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایسی پوزیشن پر ہے کہ وہ طالبان کی شرائط ماننے کے حوالے سے زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے معاملات بہتری کی جانب چلے جائیں اور ایک سیف ایگزٹ مل جائے؟ دیکھیں نا, جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کو معطل کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک طالبان کا موقف یہی سامنے آیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ لیکن صدر ٹرمپ وہ نہیں آ رہے تھے, امریکی نہیں آ رہے تھے. لیکن اب امریکیوں کو بھی شاید احساس ہو گیا ہے کہ مذاکرات پہ واپس آنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا قیدیوں والی, یہ جب سے مذاکرات روک لیے تھے تو پھر کوشش رہی کہ کس طریقے سے مذاکرات دوبارہ بحالی کے لیے ایک اعتماد سازی کی فضا قائم ہو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب زلمی خلیلزاد اسلام آباد آئے تھے اور پاکستان نے یہ رول ادا کیا تھا کہ بالکل رابطے تو ختم ہو گئے تھے امریکہ اور طالبان کے. پاکستان میں کہ جب زلمی خلیلزاد کی ملاقات ہوئی سپٹمبر میں وزیر اعظم سے نیو یارک میں, اس میں تجویز پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, کہ وہ کوشش کر سکتا ہے. پھر وہ آئے یہاں پر ان آفیشیل وہ فارمل نہیں, یہاں پر ان کی سیٹنگ ہوئی, اور اسی اسلام آباد والی میٹنگ کے بعد اس گزشتہ ماہ بلکہ اس ہفتے دوسری میٹنگ ہوئی زلمی خلیلزاد طالبان کی قطر میں, اور غیر رسمی, اور اس سے کچھ دن پہلے بھی ہوئی تھی. تو مطلب ہے کہ ایک راستہ کھل گیا, اور اس میں قیدیوں والا اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ ایک اعتماد سازی کے لیے بہت بڑا ایک اقدام ہے. اور اسی پہ اسلام آباد والی میٹنگ میں بھی, اور ویسے بھی جو قیدیوں کا یہ والا تبادلہ ہے, جو 2 پروفیسرز کا اور یہ 3 طالبان کا, یہ پاکستان نے بہت پہلے سے اس پہ سازشی کا کردار ادا کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جولائی میں جب وزیر اعظم گئے تھے تو سب سے ملاقات اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں خوشخبری آئے گی. تو پاکستان کا کسی میں ایک رول رہا کہ کسی طریقے سے مذاکرات دوبارہ بحال ہو. لیکن اب امریکیوں پہ ہے کہ آیا وہ شرائط لگاتے ہیں, جس طرح کہ افغان حکومت نے جنگ بندی کی شرط لگائی ہے. شرائط سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا سمجھتے ہیں امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی شرائط رکھ سکے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ نو گنز پالیسی ہوگی, یا تمام تر جنگیں جو امریکہ نے شروع کی ہیں یہ ختم کر دی جائیں گی. اور اب الیکشنز امریکہ کے قریب ہیں اور ان کے پاس عوام کے سامنے دوبارہ واپس جانا ہے, اور وہ کیا جواب دیں گے ان کو؟ یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے, اور یہی وجہ ہے پہلے بھی الیکشن کے بعد میں جو امریکہ نے کو واپس. سر آپ اپنی جگہ تھوڑی سی بدلیے گا, آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے, ہم سن نہیں پا رہے آپ کو. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ خود بھی اپنے لوگوں سے یہ وعدہ تھا کہ وہ فوجیوں کو واپس بلائے گا, افغانستان کی جنگ کو ختم کرے, کیونکہ افغانستان کی جنگ کے لیے اب امریکہ میں وہ والی سپورٹ نہیں رہی جو کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی. تو یہ تو ان کا وعدہ ہے. لیکن صدر ٹرمپ ایسی شخصیت ہے, کبھی کبھی وہ تھوڑے سے ذرا اس پہ وہ بیانات تبدیل کرنے والے وہ صدر مانے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اب میرے خیال میں ان کی مجبوری ہے کہ جب انتخابات کے لیے ماحول وہاں بنے گا نئے سال کے آغاز سے, تو میرے خیال میں وہ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اسی کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کل فوجیوں کی کلی کی بات کی ہے, تو یہ بھی اسی طرح ایک اشارہ ہے. اور طالبان کے ساتھ تو ایک اسی پہ تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے فوجیوں کو نکالنا ہے. اور میرے خیال میں اس میں بہتری بھی ہے کہ فوجی افغانستان سے جائیں گے تو جنگ ختم ہوگی. ندیم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ افغانستان جس میں صدر اشرف غنی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور امریکی فوجوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پر تھینکس گیونگ کا ڈنر بھی کیا. اور یقیناً افغانستان سے فوجیں نکالنے کے حوالے سے یہ بات امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس کو غیر مشروط طور پر جو ہے ان کے معاملات جو ہے حل کرنے کی جانب چاہے افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کی شرائط پر بھی عمل درآمد کیا جائے. ناظرین یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے, بات کریں گے پاک فضائیہ کی آپریشنل مشقوں کے حوالے سے. انہیں ہاک آئی کا نام دیا گیا اور 3 آپریشنل ایئر بیسز نے اس میں
हिस्सा भी लिया। हम आपको ये बताएं कि इन मशकों का मकसद जो पाक फजाइया की जारहाना हिकमत अमली है उसको जांचना था और तमाम इक़साम के जंगी जहाजों ने इन मशकों में हिस्सा भी लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम साहब से। राना साहब बताइएगा कैसी ये मशकें थी और इनकी तैयारियों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिरदा, बिल्कुल पाक फजाइया की हाकाई जो मशकें थी वो आज इख्तिताम पजीर हो गई हैं। ये एक आला सतह की ऑपरेशनल मशकें थी। इसमें पाक फजाइया के जो तीनों रीजनल कमांड्स हैं उनके तमाम जो ऑपरेशनल एयर बेसिस हैं उनके एसेट्स में बाकायदा हिस्सा लिया, अमली तौर पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मैं आपको बताता चलूँ कि पाक फजाइया के 3 रीजनल कमांड्स हैं, जिसमें सदरन कमांड जो पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके उनकी फजाई सरहदों की निगरानी करती है, सेंट्रल कमांड और इसके अलावा नादरन कमांड। तो ये तीनों कमांड के ऑपरेशनल एयर बेसिस पर इन मशकों हाकाई का इनकार किया गया और इन मशकों में पाक फजाइया के जो तमाम एसेट्स हैं जिसमें F-16 ब्लॉक 52, GF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान की पहचान है, इसके अलावा मेराज तैयारे, F-7 चीता लड़ाका तैयारे, इसके अलावा वॉक्स तैयारों और जो एयर टू एयर रीफ्यूलिंग तैयारे हैं पाक फजाइया के, उन्होंने बाकायदा अमली तौर पर हिस्सा लिया। और इसके अलावा जो पाक फजाइया की छाता बरदार पैराट्रूपिंग फोर्सेज हैं जो दुश्मन के इलाके में उतरकर अपनी जो मिशन हैं उनको मुकम्मल करते हैं, उन्होंने भी बाकायदा अमली तौर पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये बहुत ही अहम हाकाई ऑपरेशनल मशकें थी। इन मशकों का मकसद ये था कि पाक फजाइया की जो ऑपरेशन सलाहियतें हैं उनको एक मरबूत अंदाज में उनको इस्तेमाल किया जाए और पाक फजाइया की जो जंगी ऑपरेशनल सलाहियत है उसको भी जांचा जाए कि किस तरह खुदा न खास्ता दुश्मन किसी किस्म की कार्रवाई करता है। जैसा कि 18 फरवरी को जो बालाकोट पर दुश्मन ने कोशिश की और जिसका फिर जवाब पाकिस्तान ने दिया, तो ये उसी मशकों का सिलसिला है जिसमें पाक फजाइया ने आज एक भरपूर किस्म का एक मैसेज भी दिया कि मुल्की फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फजाइया हरदम तैयार और मुकम्मल ऑपरेशनल है। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम। पाक फजाइया हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये उनकी ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने के हवाले से मशकें थी जिसमें तमाम जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया और पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फजाइया है और इस हवाले से उनकी कारकर्दगी के हवाले से हमेशा मुतमईन जो है वो पाया जाता है उनकी सलाहियतों को जांचने के बाद। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फलस्तीनी अवाम जो कि अपनी आज़ादी के लिए और जो इसराइल का गासिबाना कब्जा है वहां पर उस हवाले से अपनी जद्दोजहद में मसरूफ हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिसंबर 1977 को एक करारदाद के तहत ये फैसला किया गया कि आज के दिन को 29 सितंबर को फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि इसराइल की जानिब से सेहूनी बस्तियों का क़याम अमल में लाया गया और फलस्तीनियों से उनकी जो है वो ज़मीन छीन ली गई और इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा कोशिश में मसरूफ है 1947 से कि इस मामले को हल किया जाए, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकामी इसमें हमें नजर आती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ मजीद मौज़ूआत भी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। तब्दीली आसान नहीं, एक जिद्दोजहद, ना रुकने वाली मुसलसल कोशिश। तब्दीली एक सफर है नए पाकिस्तान की जानिब। मंजिल को पाने के लिए जरूरी है अनथक मेहनत। कितना बदला है, कितना बदलेगा, कैसे बनेगा नया पाकिस्तान, हालात से बाखबर रहने के लिए जानना जरूरी है ताजा तरीन सूरत हाल। देखिए प्रोग्राम सूरत हाल सिर्फ BTV न्यूज पर। कैसे खून की नदियां हैं, ये कैसा धुआं बाजार में है,
یہ کس کی ممتا لوٹی ہے، یہ کس کا جواں بازار میں ہے، یہ کیسی خون کی ندیاں ہیں، یہ کیسا دعاں بازار میں ہے۔ لائیو ایٹ 5 میں ایک مرتبہ آپ پر خوش آمدید، اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ پنجاب کے بیشتر علاقے آج دھند کی لپیٹ میں رہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسموک کا سلسلہ جاری تھا، اور اب دھند نے جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا ہے پنجاب کے ان علاقوں کو۔ دیکھیں گے کہ کب تک جو ہے دھند جاری رہتی ہے۔ ہم نے رابطہ کیا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات لاہور اجمل شاہ صاحب سے، ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ اجمل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، پنجاب کے بیشتر علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے اور شاہراہیں اہم اور موٹر ویز جو ہیں وہ بند کیے رکھی گئیں، کیا بتائیں گے کب تک یہ دھند کا سلسلہ جاری رہے گا؟ جی بالکل، پچھلے 2 دن سے یہ دھند کا سلسلہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اور خصوصاً سینٹرل پارٹ آف دا پنجاب جو ہے ان علاقوں میں ہے، اور یہ سلسلہ اگلے 2 سے 3 دن تک جو ہے نا وہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد اس میں گریجولی کمی واقع ہو جائے گی۔ اصل میں جب ہمارے ہاں یہ دسمبر کا مہینہ اور جنوری کا مہینہ آتے ہیں تو یہ والے مہینے فوگ میں ہوتے ہیں، اس میں ہوا میں نمی کا تناسب قدرے بڑھ جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ جب کوئی مغربی ہواؤں کا سلسلہ آتا ہے اور پھر جب پاس آن چلا جاتا ہے تو پیچھے اپنے موئسچر چھوڑ جاتا ہے۔ ابھی اس وقت پچھلے 2 دن سے جو ہمارے بالائی علاقوں پہ تھا اور پنجاب کے بالائی علاقوں پہ بھی یہ بارش بھی ہوئی ہے، اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ ابھی پاس آن ہو گیا، چلا گیا ہمارے علاقوں سے، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ گیا، ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی گریجولی کم ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایروسول پارٹیکلز ہیں، جو اسموکی کنڈنس ہے، وہ بھی ابھی ہے تو صحیح لیکن بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ یہ سارے مل کے جو ہے نا فوگ کا فنامنا شروع ہو گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اسموکی کنڈیشن جو ہے نا وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں، اور مزید جو ہے نا فوگ کا سلسلہ یہ دسمبر کا مہینہ جو ابھی کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا 1-2 دن میں، تو اس کے بعد جو جنوری کا مہینہ اور یہ آلموسٹ فرسٹ یا سیکنڈ ویک آف فیبروری تک وقفے سے شدت کے ساتھ کبھی کمی بیشی کے ساتھ جو ہے نا فوگ کا سلسلہ جاری رہے گا اور جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش کا بھی جو ہے نا وقفے اسپیل آئیں گے، جو بارش کے اسپیل آئیں گے وہ اس میں بھی بڑھوتری کا باعث بنیں گے، اس کی وجہ سے بھی فوگ کی جو ہے نا ریڈیشن فوگ بارشوں کا امکان ہے جس کی وجہ سے کمی واقع ہوگی فوگ میں؟ ہاں بالکل، جب بارش ہوگی تو اس وقت فوگ نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی بارش کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے 24 گھنٹے بعد جو ہے نا فوگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کچھ دن زیادہ شدت ہوتی ہے، پھر گریجولی اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اجمل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے، اور ہمیں بتایا ڈائریکٹر محکمہ موسمیات لاہور نے کہ ابھی بارشوں کا سلسلہ آئے گا اور اس دوران بھی فوگ جاری رہے گی۔ ابھی فی الحال کچھ روز فوگ کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ سفر سے گریز کیجیے ان اوقات میں جن میں فوگ ہوتی ہے، جس میں صبح کے اوقات ہیں اور جس میں شام کے اوقات ہیں، اور اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں ان پر ضرور عمل درآمد کریں۔ ناظرین، یہاں پر خصوصی رپورٹ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ رپورٹ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حکومت معیاری تعلیم کا فروغ، غربت کے خاتمے اور نوجوان نسل کو امپاور کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہی ہے۔ اس ضمن میں کامیاب جوان پروگرام ایک اہم کڑی ہے۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ حکومت نے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرض کی فراہمی کے لیے 100 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ کامیاب جوان کی بزنس سیکٹرز میں کوئی لمٹ نہیں ہے، ایون ایگریکلچر سیکٹر کو یہ کور کر رہا ہے۔ پاکستان کے نوجوان آگے بڑھیں، اس کا حصہ بنے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں بالخصوص جو کاٹیج انڈسٹری، جو لوگ کلسٹرز میں کام کر رہے ہیں، لارج اسکیل انڈسٹری کو یا میڈیم اسکیل انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ پروگرام جو یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم ہے یہ ان کے لیے زبردست ہے۔ جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا، اسکور کارڈ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ میرٹ پہ ان کو لون ملے، کسی کے گھر کے کسی کے سفارش کے لیے ان کو چکر نہ لگانے پڑے۔ جب اس کی سکسیس سٹوری سامنے آئیں گی اور آپ کو خود پاکستان کے نوجوان بتائیں گے کہ یہ جو لون ہے بغیر کسی سفارش کے انہیں ملا۔ ہنرمند جوان پروگرام میں مدارس کی طلباء پر خصوصی فوکس کیا گیا ہے۔ کانفرنس سے UNDP، PLO، HRD نیٹ ورک اور دوسرے اداروں کے نمائندوں نے بھی خطاب کیا۔
बेसिकली कि इसका जोग्राफिकल और इसका प्रोफाइल सोशो इकोनॉमिक देखना चाहिए, ताकि वो बजाय एक ज़्यादातर पाकिस्तान के केस में ये होता है कि आप पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता। तो मेरा ये मशवरा होगा नौजवान उसके लिए कि भाई आप रीजनल लेवल पे देखें कि ये जो अफराद है वो कहाँ कहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो तमाम का तमाम उनके कामों को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, उनके मैसेज को मजीद बेहतर आगे ले जा सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट सेक्टर खुद कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उसमें वो ज्वाइन हैंड्स करें और उसको मजीद बेहतर तरीके से विद और ट्रांसपेरेंसी विद आउटरीच इसको आगे लेकर जाएं। मौजूदा हुकूमत का मकसद नौजवानों को कारोबार की आसान सहूलतें मुहैया करके हुनरमंद बनाना है ताकि वो दौर हाजिर के तकाजों से निबर्द आजमा होकर भरपूर जिंदगी गुजार सकें। रिपोर्ट आपने देखी और प्रोग्राम के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पिंक बॉल टेस्ट की पहली इनिंग्स का जो है वो मैच जारी था और मेजबान टीम बैटिंग कर रही थी। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसी बैटिंग की गई और पाकिस्तानी बॉलिंग जो है उसकी कंडीशन क्या रही। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के मामलों पर। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या बताएंगे आज के मैच के हवाले से? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है हाफिज मोहम्मद इमरान साहब? हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मैच के हवाले से बता दूं कि खेल के अख्ताम पर जो पहले रोज का था उसमें कैंगरूज ने 1 विकेट के नुकसान पर 302 रन बना लिए। एडिलेड में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बारिश के बायस ये मैच रोक दिया गया जब ऑस्ट्रेलिया के 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बने थे। और जब मैच में बारिश रुकने के बाद मैच का आगाज हुआ लेकिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तानी बॉलर्स कोई और विकेट हासिल न कर सके। ऑस्ट्रेलिया के वाहिद आउट होने वाले खिलाड़ी जो है वो 4 रन बनाकर शाहीन आफरीदी की गेंद पर जो है कैच आउट हुए। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, आज का मैच कैसा रहा? बारिश तो हुई लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी पे थोड़ी सी बात कर लीजिए, कैसे देखा आपने इसको? ये बहुत मायूस कुन खेल रहा है आज। सारा दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम किया और उन्होंने आज अगर मजबूत तौर पर उनकी हम बैटिंग का जायजा लेते हैं, पाकिस्तान ने कहीं कहीं उनको दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन हम क्रेडिट देना पड़ेगा सारा का सारा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। डेविड वार्नर और लबुशाने ने जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने बिल्कुल बेबस किया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को। और पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ये ज्यादा परेशान कुन है और ज्यादा इसको हम कह सकते हैं कि तशवीशनाक है कि दूसरे इस मैच में पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ी को टेस्ट कैप दी। पहले मैच में नसीम शाह नाकाम रहे और दूसरे मैच में जब आप मूसा खान को लेकर आए हैं तो आज का दिन उनके लिए तो अच्छा नहीं रहा। किसी भी नए गेंदबाज के लिए कोई बहुत खुशगवार माहौल नहीं होता कि जब वो पहले दिन अपने टेस्ट करियर के पहले दिन का आगाज करता है और उस दिन इसको कोई कामयाबी नहीं मिलती और मजबूरी तौर पर टीम भी नाकाम रहती है। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज दोनों शोबों में नाकाम, दोनों हमारे जो बॉलर्स हैं वो नाकाम रहे हैं और जिनको हम ऑलराउंडर कहकर टीम में शामिल करते हैं उनकी वो सलाहियत नजर नहीं आती है जब वो गेंदबाजी के लिए आते हैं। मेरे मुराद इफ्तिखार अहमद है, तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने अपने होम ग्राउंड क्राउड का भरपूर तरीके से फायदा उठाया और डेविड वार्नर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो कि इससे पहले एशियंस जब उन्होंने खेला है तो वो एक्सपोज हुए, वहां पर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 4 रोज का खेल बाकी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाए, लेकिन अभी हमने देखा सिर्फ 1 विकेट ही ले पाई पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पिंक बॉल टेस्ट जो है इसमें पाकिस्तान कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। नाज़रीन, ये था आज का लाइव एट 5। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।